सेशन में जब भी कुछ अच्छा लगे, है ना, तो क्या बोलना है? एनी गेसेस? कुछ भी गेस? हाँ? तो ये टोन रहेगा सेशन का, ठीक है? डांस कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो, जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा टकराए बिना डांस भी कर सकते हो. Alright, moving on. So how to create timeline, price and launch and gen, वो लांबो टॉपिक है, बोलते बोलते अटकी जगह से. Let's move forward. Okay, so about me, who am I and what's my name, right? So my name is not Bhupendra Jogi, that's for sure. So this was my intro slide last year in the DevFest. It was like Karda Sambo, Monstack podcasting, etc. Now it has changed. I created 2-3 GenAI products. Masti bade naki. So one of them was Love GPT. It was trending, so bana liya. Science GPT, connect with me, and few more. You can scan this QR if you want to connect. Next is I am a co-organizer of GDC Gandhinagar now. I am a co-organizer of Open Source Weekend, 2 communities based in Gandhinagar and Ahmedabad. Since last year, I have given more than 50 talks, both national and international. I have just more than 15 hackathons. Hackathons कितना attend किए? कितने hackathon attend किए आज तक? Okay. But most important update, I am like 15 દિવસ થયા છે લગન थे. એટલે engineer છે તો points માં convert કરી નાખ્યું. So I have 0.046 years experience. इधर आओ. All right. So whenever you see this emoji, yellow hand, then please raise your hand. Right. Clear है? ये point clear है? Who are attending for the first time? English? Okay. हिंदी वाला कितना? अरे हमारा राजकोट ही होने वाला, सूरत वाला, ओके, तो वांधो नहीं आता. बाकी अपने खाओ इंग्लिश में वांधो नहीं. Alright. Let's go to how to create it. So before starting, how many of you have used LLMs? Okay. Can anyone say some use case that whatever use kari hua? Like in terms of when we first it was a digitized product in which the LLM which I have used to automate the specific things when we are the PMS system and we have the converted the things, the backlog things into a priorities and the priorities, and then we need to move into the sprints, and from that we need to plan it out, the approximate budget forecasting and all. So the train them for the forecasting and how the understanding the text of it. Any other use case commonly? Anyone who has raised the hand? Yeah. For code reviews, finding bugs in codes, for getting some. Okay. What about when the LLM hallucinates and it gives wrong code review? Then again try different prompts and try until you get a good one. Else try different LLM. Let's say if you are doing interchangeable, then do it in the card. Alright, bar. Okay. DVD का logo छुपा देता हूँ. Okay. Any other popular use case that you have tried in your working, like for work purpose? Okay. Alright. So like emails ऐसा कुछ emails तो लिखे होंगे. That's the first use case, right? Okay. So how many of you want to create a Gen AI product? Like because it's the topic on उस पे ही है. Okay. So any specific domain या कुछ any specific domain you want to target, like financial domain, health domain? Author. finance, What's that? Books, author. Author. Okay. Text based basically more or less. Finance. Okay. pharmacy, Pharmacy. मतलब health tech. Okay. Entertainment. Academia. And Entertainment. Okay. EdTech. Okay. All right. So let's move forward. We'll consider some of the domains. So what's the base of your Gen AI product? For example, you said for authoring. So आपका use case तो clear है. You'll be using the LLM part.
उससे आप लाइक यू प्रोवाइड सम इनपुट्स जिससे एक एक चैप्टर की आउटलाइन लिखेगा, उसके जो चैप्टर का मान लो इंट्रोडक्शन या टेक्स्ट लिखेगा, राइट. व्हाट वाज द अदर डोमेन, आई फॉरगॉट. Finance. Finance. So which part in that you would use the GNAI part? Because GNAI hallucinate तो करता है और वो करेगा because of the nature how it is built. So finance and healthcare are very sensitive topics. So which area specifically you think you would like to use GNAI? Trading. Basically, the people wants that specifically the candle, the predictions and all. So that. for that, in my experience, there are other ML models that would be more accurate because LLMs would be maximum 85-90% accurate. So for that, I don't think GenAI is funding money जैसे GenAI वैसे तो, but and even for the healthcare part, right? We generally don't suggest to use LLM for healthcare part. We can use it for the understanding, like requirement gathering. या जो chatbot की जगह पे जब use कर रहे हैं, to otherwise API.ai वगैरह जो है, old school chatbots, right? They were fine for understanding the intents. खाओ पड़ा सुको उच्च बजाय टेक वाला चल ओके ओके नहीं तो 4 फुट ऊपर नहीं जाते ना ओके. Other domains, EdTech is very, it's one of the most important use case. Entertainment, हाँ, को तो तो सुमा तो स्क्रिप्ट आ रही है. Alright. So if it is LLM, is it LLM based or is it diffusion based? Diffusion किसके को पता है? Different models, stable diffusion, Midjourney, किसके से different models use किए? और किसे use किए different models? Midjourney, DALL-E, stable diffusion, DALL-E सुना होगा. DALL-E किसके से use किया? किया है तो Midjourney, correct. So दो ही major part है GenAI में, diffusion हो गया और LLM हो गया. So most of the use cases were LLM based. So we'll focus more on the LLM side. So they both have a similarity. So we'll go on the similarity part once again. So in your product, for example, आप जो author वाला product था या finance वाला था, so either you might scrape the data, because आपको data का input तो लेना पड़ेगा, right? Even in the healthcare tech, right? You need to either scrape the data या फिर किसी API से आप trigger लो. API में ना सबको. Or you might take some user inputs कि भाई कोई MCQ होगा, कुछ drop downs होंगे, कोई data buttons होंगे, right? और collection of code, मतलब कुछ predefined data set होगा, वो आप वहाँ से लोगे, and then you will use this. Mind से क्या रखते हैं? So even in that use case, you will take some user inputs and you will take some scraped or API based data. Right. Then once it is there, if you are using LLM based one, so किस में OpenAI या BARD की direct API नहीं है, but via GCP, how many have you used that APIs? OpenAI. सारे OpenAI वाले. Okay. So, any issues have you found in the API compared to the ChatGPT version? उससे कैसा होता है कि फर्स्ट टाइम आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो तो उसके मॉडल प्रिपेयर नहीं होता है वो कंटेंट के लिए, तो फर्स्ट टाइम वो कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, और वही सेम प्रॉम्प्ट दूसरी बार आप रिक्वेस्ट डालोगे तो वो रेडी करके भेजेगा आपको, क्योंकि जो कंटेंट उसके पास नहीं है वो उससे सर्वर घुसता है. Alright, correct. और कोई ये तो ओवरकम हो सकता है, ये तो डेवलपमेंट टाइम पे अपन हो जाएगा वो, जब एक दो बार डेवलपमेंट में हम हिट करेंगे तो वो थोड़ा हो जाएगा. और उसमें वी हैव डायनामिक रिक्वेस्ट बहुत डायनामिक कि मैं कोई रियलिस्टिक का कोई कंटेंट से डिस्क्रिप्शन बनाना है, Correct. हर 10 कस्टमर को 10 सेम कंटेंट से डिफरेंट ईमेल भेजना है, तो इट्स सॉल्व ये वो सॉल्व तो वो नहीं करता ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. करेक्ट. और कोई इशू दैट आपने नोटिस किया हो? कई बार वो फ्री वर्जन अपने इसमें जब मैं डेट टाइम द टोकन है लिमिट रेट लिमिट्स, फ्री है. रेट लिमिट्स तो एंटरप्राइज में भी है, थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ग्रामर कंटेंट सेंस आते हैं, ग्रामर कंटेंट जो वर्ड्स होते हैं करेक्ट. लेक्सिकन थोड़े सेम आते हैं. करेक्ट. और कोई प्रॉब्लम? Also same prompts पे different answers हर बार. वो तो फीचर है. अगर हमको टारगेटेड सबके लिए वही करना हो तो वो LLM पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो सेम बहुत अगर एकदम सेम
स्ट्रिक्ट लिखोगे ना प्रॉम्प्ट, फिर भी वो चांसेस है थोड़ा चेंज करेगा ही, क्योंकि वो तो एक्चुअली फीचर है, मतलब सही में। ऑलराइट, सो दिस आर दी एक मोस्ट कॉमन इशू जो आपने शायद बताया नहीं अभी, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। एपीआई में कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा। चैट जीपीटी हम यूज करते हैं, ऊपर कॉन्टेक्स्ट रहता है, एपीआई में नहीं रहता है। एंड अपने यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में वी माइट रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ऑथर वाला है, ठीक है, तो ऑथर वाले में हमने लिख दिया कि हमें बुक बनानी है चिल्ड्रन में या किसी में भी, तो टॉपिक वगैरह डाल दिया, उससे समझ तो वगैरह बन गया, रिस्पॉन्स आ गया वापस, यहाँ तक है सबको क्लियर है? ओके, रिस्पॉन्स आ गया। अभी नेक्स्ट टाइम हमें मान लो चैप्टर की आउटलाइन चाहिए, तो पूरा थोड़ी वापस भेजेंगे उसको जो रिस्पॉन्स आया वो, अगर वापस, बिकॉज हमारा टोकन लिमिट भी, टोकन का साइज का भी लिमिट है, पेलोड में भी लिमिट है, एंड जो आउटपुट आ रहा है तो लोगों को कलेक्ट करके, पहले 4K 8K का लिमिट था टोकन का, दैट इज कलेक्टिवली इनपुट आउटपुट दोनों का इकट्ठा होता है, राइट। सो वो कंटेक्स्ट के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे? एनी केसेस? एनीवन? डेटाबेस? So that is, so हमें तो पता नहीं था, right? When we tried, so we also didn't knew, so we also tried doing databases, right? जैसे अपन डेटाबेस के आगे कैशिंग का लेयर लगाते हैं, right? So something like that, and it works fine for very limited narrow use case. क्या कर सकते हैं कि मतलब मान लो आपका जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, आप तो उसको एक तो श्रिंकिफाई कर दो, एक इंडेक्स बनाओ और उसके रिजल्ट स्टोर करते जाओ, बट नॉट फॉर दिस कंटेक्स्ट, उल्टे कंटेक्स्ट है, मतलब जब आपको रिट्राइवल चाहिए, when say you are using it as a chatbot, ठीक है, तो चैटबॉट में आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी जो सिमिलर होगी, जो यूजर पूछता होगा, तो हर बार अगर वो एपीआई पे कॉल करने जाएगा तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। सो फॉर दैट यूजिंग डेटाबेस इज फाइन, बिकॉज थोड़ा 19-20 होगा चलेगा, राइट। सिमिलरिटीज आ जाएगी, राइट। ऐसे भी ओल्ड स्कूल चैटबॉट्स में तो ऐसा ही होता था ना, वो तो इंटेंट फाइंड करके आउटपुट तो उसका पड़ा ही था कि ये 50 अपने पास आउटपुट रिस्पॉन्स है, इंटेंट जो आपका वर्ड आगे पीछे होगा, हे हाय हेलो, उसके हिसाब से आउटपुट तो वही आने वाला है, राइट। सो दैट्स वन ऑफ इट। सेकंड इज, इफ यू वांट कॉन्टेक्स्ट यू कुड यूज अ फ्रेमवर्क लाइक लैंगचेन। लैंगचेन किस किससे सुना है, यूज किया? अदर्स? ओके, सो जब थोड़ा टेक में जाएगा चलेगा ना? एवरीवन? ओके, सो लैंगचेन का जेएस में भी फ्रेमवर्क है, पाइथन में भी फ्रेमवर्क है, राइट। और अगर आप जेएस है मतलब नोड जेएस मंच टेक में अगर आप करते हो, मान मीन तो भी व्यू हो गया जो भी कर रहे हो, सो लैंगचेन और जेएस इज वेरी, बहुत ईजी है, इतना सा कोड है, अगर आपको उसका कंटेक्स्ट स्टोर करना है तो, एंड विदाउट इट आप नहीं कर पाओगे। आप अगर आप डायरेक्ट एपीआई से करोगे, बिकॉज वी हैव ट्राइड दैट एंड एक क्लाइंट चला भी गया उसकी वजह से, सो आप कितना भी चेनिंग कर लो कि इसका रिस्पॉन्स आ गया, इसका हम कुछ पार्ट लेके रिस्पॉन्स को भेजेंगे। वी ऑल्सो ट्राई डूइंग प्रॉम्प्ट्स लाइक कि भाई तो याद रख, वी आर आस्किंग ChatGPT टू रिमेंबर इट, बट इट विल लॉस्ट इट, राइट। एंड इफ यू आर यूजिंग इट फॉर एनी एंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो आपका डेटा तो बड़ा होगा ही, राइट। मतलब आपको मान लो 4 जगह 4 डेटा चाहिए, चाहे छोटे छोटे क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए आपको 4 अगर अलग एपीआई कॉल कर रहे हो, राइट। एक तो हो गया अगर आप सीक्वेंस में कर रहे हो, मतलब मान लो एक का रिस्पॉन्स आया, एक और एक इश्यू है, LLMs की APIs का रिस्पॉन्स टाइम बहुत बड़ा है। किसी ने नोटिस किया है थी? पहली API तो आ जाएगी फटाफट, अगर आप एक ही टोकन से बार बार API कॉल करोगे 30-30 सेकंड लेते, बिकॉज इट टेक्स मोर देन 30 सेकंड। तो अगर मान लो आपको कोई पेज है, कोई लेआउट समझते हो, लेआउट कितने लोग समझते हैं? सिंपल वेब लेआउट, ठीक है। मान लो आपका 4 कॉलम का पेज है और 2 रो है, ठीक है, आपको 8 पीस है, वहाँ पे आपको कोई कॉन्टेक्स्ट या कुछ टेक्स्ट चिपकाना है। ये यूज केस क्लियर है सबको? तो आपका आइडियली तो आ सकता है एक में ही, लेकिन वो सबका कुछ ना कुछ चीज़ें अलग है। तो अगर आप सिंक में, मतलब एक के बाद एक प्रॉमिस लगा के, वो देन वगैरह लगा के, प्रॉमिस पता है सबको, राइट? तो लागू जो खबर से सो आप वो सिंक में करोगे तो 30 सेकंड करके कितना 4 मिनट तो वहीं पे हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। या उसका आप फॉल बैक क्या कर पाओगे? या तो कोई स्केलेटन लगा लो कि भाई हाँ आ रहा है, बन रहा है, राइट। कि वो कितनी बार करोगे? एक बार आप क्लाइंट को बना सकते हो, हर बार नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपका वहीं पे कस्टमर ड्रॉप वहीं पे हो जाएगा,
मान लो जो आपका साइन अप फॉर्म होता है राइट, तो वहाँ पे जितना कस्टमर ड्रॉप होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा, बिकॉज आपका वहाँ लोडिंग ही हो रहा है, चाहे स्केलेटन है चाहे वो है, तो लोडिंग ही है. सो वो स्टोरी शॉर्ट, यू नीड टू यूज अ फ्रेमवर्क लाइक LangChain. दूसरे भी है, इनफैक्ट यूजिंग LangChain आप एजेंट्स भी बना सकते हो. शायद आपने सुना होगा बेबी AGI वगैरह सुना होगा राइट, बेबी AGI काफ़ी सारे एजेंट्स हैं राइट. सो यू कैन यूज दैट फॉर द सेम पर्पज, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज बेबी AGI वगैरह सेपरेटली विदाउट LangChain एज वेल फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस. हर सारे यूज केस में नहीं चलेगा, एंड सारे लैंग्वेज भी वो सपोर्ट नहीं करता है, JS सपोर्ट नहीं करता है, आपको पाइथन पे ही जाना पड़ेगा. सो मे बी यू वुड नीड टू यूज समथिंग लाइक क्या आज क्या Django, Flask, फास्ट API जो भी चल रहा है पाइथन का मार्केट में राइट. Django तो बहुत टाइम हो गया, तो समथिंग लाइक दैट यू नीड टू यूज, अदरवाइज वो नहीं चलेगा. ओके, लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम. हाँ, Should we use the proxy sites to overcome these things? Proxy sites as in? multiple proxy sites से हम उस LLM मॉडल को रन करके we can get the specific response just because of that. करेक्ट. उससे बेटर सोल्यूशन क्या है, व्हाट वी ट्राई कि सिंक, वो सिंक का बात सबको समझ में आया ना, हाँ. कि प्रॉमिस लगा कि एक के बाद एक कॉल कर रहे. तो उसके बाद टाइम बढ़ रहा था, तो हमने क्या किया कि काम करते प्रॉमिस ऑल लगा लेते. समझ आ रहा है सबको, प्रॉमिस ऑल वाला कि पहले वाली कॉल होगा, उसमें रेट लिमिट आ जाता है. रेट लिमिट को हम प्रॉक्सी से भी can नहीं कर पाएंगे, टोकन तो एक ही है ना. token से हाँ. इश्यू समझ लो क्या होगा राइट. ये आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इश्यू आएगा ही, बिकॉज अब ये हम फेस कर चुके हैं, इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है. OpenAI साइड से भी नहीं है और गूगल साइड से तो मतलब नहीं है. Vertex API में एक सॉल्यूशन निकाला है, बट इट्स नॉट येट देयर. ये इशू क्लियर है सबको कि कौन से इशू डिस्कस कर रहे हैं. सो आपको LangChain के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, एक छोटा सा गेम खेलते हैं. डिफ्यूजन मॉडल अपने अपन सबको CRUD पता है, CRUD सबको पता है. हाँ, तो सबको कुछ एक पॉइंट कॉमन है. Okay. तो क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? ओके. इसमें से कोई एक चीज़ है ना मिसिंग है LLMs में और GenAI में इन जनरल, क्या होगा वो? चलो दो चीज़ मिसिंग है, एक मेन इंपॉर्टेंट है, क्रिएट कर सकता है करेक्ट. सो मान लो का लेट्स टेक अ स्टेप बैक, डिफ्यूजन साइड चलते हैं ठीक है. तो डिफ्यूजन साइड मान लो आपने कोई चीज़ बनाई, कोई एसेट क्रिएट किया, एसेट समझते हैं सब, कोई इमेज बन गया, कुछ बन गया. अभी आपने उसके हिसाब से पूरा ब्रांड किट सेट कर दिया, ठीक है कि भाई ऐसा ऐसा है ठीक है. तो अगर आपको कोई छोटा सा चीज़ उसमें चेंज करना है तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा राइट. सो मान लो अगर आपका कोई मार्केटिंग का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, मैं रियल एग्जांपल जो हमने बनाया था कि कंपनी का डिटेल्स डाला ठीक है, वो उसके हिसाब से कुछ और डेटा डाला, तो उसको पूरा कैंपेन बना के दे रहे. थियोरेटिकली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. इशू की बात है, क्लाइंट को ये फीचर चाहिए कि भाई मेरे को एक ही चीज़ अपडेट करनी है, वो एक चीज़ अपडेट करने के लिए वो अपडेट पे क्लिक करेगा, पूरा डेटा पूरा कैंपेन ही चेंज हो जाएगा. समझ आ रहा है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको आप ब्रेक डाउन कर दो कि ये इसका डेटा अलग API कॉल से आया, इसका अलग से आया, उसमें भी एक और इश्यू होगा. कैन एनीवन गेस? अगर आप चाइल्ड थ्रेड्स बना रहे हो कि एक पेज के अंदर अलग अलग लेआउट्स के लिए आप अलग अलग API कॉल कर रहे हो, चाहे सिंक में करो, चाहे पैरेलली करो, चाहे LangChain से करो, पेरेंट कॉन्टेक्स्ट तो एक देना पड़ेगा ना आपको. उसके अंदर एक इशू ये आएगा उसको ये मतलब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे मान लो 3 तरह की कोई चीज़ चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरी कोई मान लो कंपनी है जो गाड़ियाँ बेचती है ठीक है, आजकल बहुत बिक रही है. तो मेरे कोई मेरा शोरूम में गाड़ियाँ बिक रही है, उसके हिसाब से मार्केटिंग कैंपेन चाहिए, क्लियर यूज केस. तो मैं बोलूँगा कि मेरे को 3 अलग API कॉल मैं कर लूँगा LLM के हिसाब से. हाउ वुड यू स्टॉप कि भाई पहला वाले में जो डेटा आया है इनपुट तो सेम है, प्रॉम्प्ट भी सेम है राइट, कि वो सेम ना आए. मोस्ट ऑफ द टाइम सेम नहीं आएगा, वो तो फीचर है राइट. अगर वो सेम आता है तो क्या करोगे? सो वो इश्यू है, उसका सोल्यूशन नहीं है. उसका सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा. हमने कैसे जुगाड़ लगाया कि हमको अगर 3 डेटा चाहिए
तो हम पहले में 9 कॉल मार रहे हैं ठीक है, टोकन तो काइंड का है, ठीक है, तो हम 9 कॉल मार रहे हैं, उसके ऊपर एक और कॉल लगा रहे हैं, लेकिन ओपन एआई का नहीं, जो रिस्पॉन्स जल्दी दे, मतलब समथिंग लाइक NLTK टोकनाइजेशन बेसिक, कि मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं है तो दिखा दो, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे? ये यूज केस समझ में आ रहा है किस किस को? समझ में आ रहा है? ओके, और किसी को समझ में आ रहा है यूज केस? फिर से समझाओ। ओके, मान लो आपकी कोई शॉप है, ठीक है, या आपके क्लाइंट की शॉप है, गाड़ी का शोरूम है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के करना है कि भाई मेरे को 3 मार्केटिंग कैंपेन बना के दे, क्लियर है? याद है? तो एक ऑप्शन क्या हो गया कि आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे कि भाई ये मेरा नाम है कंपनी का, ये वगैरह वगैरह डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स, एंड प्रॉम्प्ट में लिखोगे गिव मी 3 मार्केटिंग कैंपेन्स। उसमें एक दिक्कत और आएगी, एक तो साइज खत्म हो जाएगा आपका, ये हो जा रहा है, प्रॉम्प्ट का लिमिट है, प्रॉम्प्ट का भी लिमिट है, आउटपुट का भी लिमिट है, तो एक तो साइज खत्म हो जाएगी। मान लो साइज खत्म नहीं हो रही है, तो उसमें आप निकाल के डेटा कैसे लाओगे? रिजेक्ट्स लगाओगे, वो तो टेक्स्ट ही देगा ना पूरा आपको, तो डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? उसको एक्सट्रैक्ट करने के फिर से ऊपर एक कॉल लगाओगे क्या कि इसमें निकाल के दे? इशू समझ में आ रहा है? रिजेक्ट्स नहीं लगा पाओगे ना, आप स्प्लिट या कुछ करके कर पाओगे, बिकॉज इवन इफ यू स्पेसिफाई कि भाई मेरे को आउटपुट 1 या मार्केटिंग कैंपेन 1 लिख के तुम मेरे को कैंपेन आइडिया दे, वो नहीं देगा हर बार। समझ आ रहा है क्या कह रहे हो? तो वो तो फीजेबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप लैंगचेन यूज़ कर रहे हो, लैंगचेन में आप वेरिएबल्स बना सकते हो कि मार्केटिंग कैंपेन 1 2 3 _1, तो वो वेरिएबल के अंदर से आएगा, तो आपको पार्स करने की झंझट नहीं है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ये पार्ट किसको तो समझ में आया? ओके ओके सर, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि गिव मी द आउटपुट इन एप्लीकेशन स्लैश जैसन ओनली एंड गिव मी द 3 आवाज give me the answer in application with the content type of the application JSON and give me the for example 3 unique Keys. data set keys like for the output, Correct, right? correct. So वो हमको array में दे देगा, करेक्ट। ठीक है, तो फिर array को डायरेक्टली हम यूज कर सकते द हैं। थिंग इज कि वो फीचर है कि हर बार वो सेव नहीं देगा। हाँ, तो वो सेम नहीं चाहिए ना आपको, आपने तो उसके लिए फॉर्मेट तो भी सेव नहीं देगा। फॉर्मेट हम स्पेसिफाई कर हाँ, ऐसे सेव कर रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है। नहीं वो देता ही है ना, क्योंकि ChatGPT देता है। चैटबॉट यूआई जो है ChatGPT करता API है। नहीं देगा, क्या API करेगा? देता है। हर बार नहीं देगा, करके देगा। नहीं वो चैटबॉट यूआई है ना, वो चैटबॉट यूआई करके एक वेबसाइट है, उसमें आप देखोगे ना तो वो ऐसा प्रॉम्प्ट में तो उसने लैंग्वेज यूज किया पीछे। नहीं आप जो उसका जो रिक्वेस्ट नेटवर्क में जाके चेक करोगे ना, तो उसने क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट में ही गिव मी द आउटपुट इन Application slash टेक्स्ट पर वो रिलायबल नहीं है, बिकॉज मान लो वो भी आएगा आपका टेक्स्ट के अंदर, API का रिस्पॉन्स तो आपका 200 आया, हाँ उसके अंदर आपको आएगा कि भाई ये रिस्पॉन्स है, इसका ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग में आएगा पूरा, हाँ स्ट्रिंग में आया, स्ट्रिंग में वाइट्स में दबा आपको वो जेसन में नहीं देगा। नहीं जैस्मिन देता ही है ना, कोड भी देता है फॉर एग्जांपल, राइट? तो जैस्मिन क्यों नहीं देगा, देता ही है। देखते हैं कि टेक्स्ट के अंदर जेसन देगा, API का जो ऐसे स्ट्रिंग देगा, एज अ स्ट्रिंग देगा, हाँ, just तो उसको पार्स करना पड़ेगा, तो वहाँ फटेगा। समझो क्या कह रहा हूँ? वो आपको उसके अंदर वेरिएबल में जेसन का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप टर्बो के नीचे कोई भी मॉडल यूज करोगे, डाविंची या कोई मॉडल्स, पता है डाविंची का मॉडल्स आप कोई भी मॉडल यूज करोगे, उसमें जो उसका एसडीके है, चाहे आप जेएस का एसडीके हो चाहे पाइथन का हो, चाहे आप सीधा कर्ल लगो, सीधा आप HTTP से करो, उसमें वो ऑप्शन ही नहीं है तो जेसन दे। अभी आएगा, शायद प्रो में अभी आया हो, जो GPT-4 उसमें आया हो, 3.5 में नहीं है, तो टेक्स्ट आप पार्स करोगे हर बार गारंटी नहीं होगा, आपको वेरिएबल से ही करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करना। बट सेकंड थिंग क्या हुआ कि सब लोग नीश में प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ओपन एआई की API यूज करके, राइट, जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ गया, ओपन एआई डिपेंडेंट क्या आ गया, ये देखा किसने? ओपन एआई का डेव समिट था फ्यू मंथ्स बैक। तो आप अगर आपका छोटा सा नीश कोई यूज केस है, आप सीधा ये किसी से देखा था ये वाला, तो देखो सबसे पहली चीज जेन एआई में नई चीजें देखते रहो कुछ चीज याद रहना आ रहा है, राइट, वरना प्रोडक्ट बाहर निकाल 5 बन चुका है।
फिर डोमेन रहेगा आपके पास खाली बस. So the big boy, right? So just brief about it. So they introduced something called, आप किसी को पता है? Someone want to add into that? Bots का custom GPT का आया था, किसी को बताओ क्या था पता है? वो नाम हाथुसु. हाँ, अपना कस्टम चैट जीपीटी अपना कस्टम बना सकता हाँ, कैसे? अपने डॉक्यूमेंट और सब कुछ डाल के एग्जैक्टली GUI ऐसे बना सकते हो. सिंपली फर्स्ट पार्टी सपोर्ट है. मोर देन दैट, अगर आप पे कोई क्लेम होगा कॉपीराइट का किसी का, तो दे विल प्रोटेक्ट. अगर एंटरप्राइज वर्जन पे हो जाए. सो एंड मेजॉरिटी जो जीपीटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सब ऐसे ही कि लीनियर है. मतलब कि कोई डेटा सेट है, एक पॉइंट डाला और हो गया कि भाई ये है, तो वो तो इससे ही सॉल्व हो गया. तो आप जो बना रहे थे वो तो घर पे ही रखो, कोई मतलब है नहीं अभी, राइट? सो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. सो विच विल बी रियलाइज कि हम बहुत बड़ी चीज़ तो बना पाएंगे नहीं, वो तो टेक जायंट्स कर रहे हैं, ठीक है. बहुत छोटी चीज़ बनाएंगे या बहुत छोटे डिश में बनाएंगे तो कोई पैसा है नहीं. आप दो, हम दो ही लोग यूज़ कर रहे होंगे, और तीसरा कोई ऐसा दोस्त जिसको करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है, राइट? So let's not go into big niche or big market, not a smaller one, something in between, because वहाँ पे big tech नहीं आएगा. Something niche, horizontal नहीं, horizontal मतलब कि थोड़ा generic नहीं, vertical, लेकिन छोटा niche, बड़ा niche भी नहीं, ना वो भी लोग खा लेंगे. Yeah, that's what I said. And most importantly, ये तो पता है सबको कि भाई enterprise से डेटा नहीं मिलेगा, पैसा मिल जाएगा. तो enterprise अगर पैसा कमाना है तो एंटरप्राइज की छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जेडीए के प्रोडक्ट्स बनाओ. बड़े प्रोडक्ट्स तो वो लोग बना ही रहे, राइट? बिकॉज दे हैव दीस सूट्स, राइट? एंटरप्राइज का माइक्रोसॉफ्ट का भी है, गूगल का भी है, एंड दे हैव ऑल द डेटा, राइट? दे ऑलरेडी हैव द डेटा, एंड क्लाइंट सपोर्ट नहीं करने वाले, डेटा नहीं देने वाले आपको. ओके, थोड़ा स्किप करते हैं. ओके, लास्ट स्किप करते हैं. सो हाउ टू प्राइस इट, राइट? सो आप सबने सास किसको पता है? तो सबसे कॉमन प्राइसिंग आपने देखी होगी सास मॉडल्स की. क्या होती है मोस्ट कॉमन प्राइसिंग? फ्री. उसके अलावा जिससे पैसा कमाया, मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होता है? somewhere around $10 to $50. करेक्ट, $5, $10, $50 नॉमिनल, राइट? $5 मतलब इतना नहीं है कि मतलब उसको लगा कि भाई किडनी निकाल के मांग रहा है, राइट? छोटा सा अमाउंट है, वेरी मिनिमम, एंड यूजुअली इट इज पर सीट, राइट? सास में यूजुअली ऐसे है, पर सीट पर मंथ, दैट्स द स्टैंडर्ड. ये सबको पता है, सबने यूज किया होगा, स्लैक, जीमेल कुछ भी यूज किया होगा. सो रिसेंटली इन दिस जितने प्रोडक्ट्स बनाए जेन एआई पे, आइदर फॉर अस और फॉर आवर क्लाइंट्स, व्हाट वी रियलाइज की जेन एआई का कॉस्ट तो है, ठीक है? आप अगर LLM यूज करो चाहे डिफ्यूजन यूज कर रहे हो, उसका इट इज़ वेरी हेवी. अगर इवन इफ आप सेल्फ होस्ट कर रहे हो तो आपका सर्वर कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत हैवी है वो. तो सास का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, सास का ऑपरेटिंग कॉस्ट नेक्स्ट टू नथिंग होता है फॉर रेगुलर एप्लीकेशन, राइट? खाली थोड़ा बहुत, मतलब मान लो इफ द सब्सक्रिप्शन इज $5, योर ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर एंड द कोड पार्ट 10-20 सेंट्स होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब, राइट? आपका मार्केटिंग कॉस्ट ही होगा मेजॉरिटी, राइट? ये अग्री करते हैं सब? इन दिस ऐसा नहीं है, इसमें जेन एआई का प्रोडक्ट है तो उसका भी कॉस्ट हैवी रहेगा. वाई तो सबको पता होगा, तो मैं स्किप करता हूँ टू टाइम इश्यूज कि दोनों हैवी है, राइट? इसमें किसी डाउट हो तो यू कैन आस्क, मैं थोड़ा स्किप करता हूँ. ये सबने देखा होगा टोकन्स वाला, तो ये स्किप करता हूँ, ठीक? कि इतने टोकन्स है, ये कॉस्टिंग रहता है इसका, ये भी सबसे लोएस्ट मॉडल का है. ऑन द कॉन्ट्रारी, माय ऑब्जर्वेशन इज दैट चाहे अपना बेस कॉस्ट चेंज हुआ है, बट क्लाइंट थ्रेशोल्ड इज स्टिल द सेम. क्लाइंट को लगता है कि भाई अभी भी मेरे को $5 की प्रोडक्ट्स ही चाहिए, 5, 10, 15, 20. एंटरप्राइज क्लाइंट्स इज अ डिफरेंट थिंग, बट मिड टियर और या SMEs, उनका बाइंग थ्रेशोल्ड इज स्टिल द सेम, फ्रिक्शन वही है. तो अगर आप कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ाओगे तो नहीं बिकेगा. और अभी ऐसा हो गया है क्लाइंट्स को कि स्पेशली फॉर जीपीटी प्रोडक्ट्स कि ये तो चैट जीपीटी भी दे रहा है, तो मैं खुद नहीं कर लूँगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग अ बिट एन इशू. सो व्हाट वी हैव, we advise our clients and what we internally do is
इनिशियली वी कीप द प्राइसिंग सिमिलर टू SaaS, चाहे वो कट टू कट ही क्यों ना जाए, बिकॉज वी विल रिक्वायर सम यूजर्स. देन हाउ टू लिमिट द स्पेंडिंग, बिकॉज कॉस्ट तो बढ़ रहा है. ओनली यूज इट वेयर नेसेसरी. साउंड सिंपल, चैटबॉट लेकिन सब हर जगह यूज कर रहे हैं. चैटबॉट में यूज मत करो. सब लोग चैटबॉट में यूज कर रहे हैं कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए, चैटबॉट में यूज करो ही मत. मेरा तो ये सजेशन है, बिकॉज उसके ऑल्टरनेटिव्स जो है दे माइट नॉट गिव द बेस्ट थिंग्स, बट वो काफी चीपर है, राइट. और भी काफी केसेस है, वी कैन टॉक ऑफलाइन. यूज ऑथ एंड लिमिट्स. अगर आप फ्री में भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट गूगल ऑथ डाल दो, कुछ एक मेजर डाल दो, और 3, 4, 5 ऑन एन एवरेज. अगर आप फ्री टियर दे रहे हो तो 5 API कॉल्स का लिमिट दो, तो आपका कॉस्टिंग बैठेगा. 5 API कॉल्स फॉर यूजर. तो आप उसका काउंट करोगे टोकन के हिसाब से, तो एवरेज आ जाएगा कि आपका $1-8 के आसपास खर्च हो रहा है. तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, कैग आ गया, तो भी आपका शायद पैसा बने ना बने कट ऑफ हो जाएगा. समझ में आया? ये किसके तो समझ में आया लास्ट पार्ट. ये तो हमने बात किया दे आर रेट लिमिट्स. ये हमने भी टॉक अबाउट दिस है डेटाबेस लाइक कैशिंग. ओके, ये भी आप कर सकते हो डेटाबेस में. शायद मैंने बोला कि छोटे छोटे आइडेंटिफायर बना के उससे आप इंडेक्स करो. जैसे प्राइमरी की में हम इंडेक्स करते रहे, वैसे यू कैन यूज एक्चुअल कैशिंग डेटाबेस एज वेल. रेडिस भी आप यूज कर सकते हो. रेडिस हो गया काफी EL के स्टैक पूरा, राइट. EL के एंड OpenAI विद LangChain, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है अभी तक जो हमने फाइंड किया है. जिसको EL का फुल फॉर्म पता नहीं, इलास्टिक सर्च, लॉगर एंड किबाना. इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सर्चेस जो इजीली कर सकते हो. कंप्रेस द डेटा विदाउट लूजिंग द डिटेल्स, ये कर सकते हो. OpenAI एंड Vertex है, बोथ कैन डू इट वेरी एफिशिएंटली एक्सेट्रा. अगर आप एप्रोप्रिएटली नहीं करोगे तो GenAI के बिल से ऐसा हो जाएगा कि खाली PC बचेगा, बाकी सब चला जाएगा. ये भी GenAI से ही बना है, तो रहना चाहिए GenAI का. एंड हाउ टू लॉन्च. सो इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन लास्ट 2 मिनट्स, इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट GenAI का जो टाइमलाइन है, लॉन्चिंग टाइमलाइन यूजुअली 15 दिन या 30 दिन के अंदर कर लो, वरना कुछ नया आ जाएगा. That's the space, that's the landscape, like it or not. That we have seen that happening, right? आपने तो किसके ट्राई किया कोई GenAI प्रोडक्ट बनाने का और लॉन्च करने से पहले बन गया नया? You tried? And launch, what was the timeline of launching? 10 days. Perfect. That's what I'm doing. Okay, so on. डॉक्यूमेंटेशन या फिर बाद में प्लान ड्रॉप कर दिया. Okay. That's a very smart move. ड्रॉप करना अच्छा है. और किसी और ने? ओके, सो ट्राई करना, लेकिन खत्म कर लेना. या तो ड्रॉप कर लेना या तो 10 दिन में कर देना. ज़्यादा लंबा वो इसका बिल ही बहुत आता है. एंड ट्राई टू लॉन्च इट फॉर जस्ट 100 और 1000 यूजर्स. उसको टेस्ट बंद कर दो, वरना उसका कॉस्ट बहुत हाई जाएगा. लॉन्च ऑन प्लेटफॉर्म लाइक प्रोडक्ट, वी हैव गॉट सम अमेजिंग रिजल्ट्स. PH है, काफ़ी और प्लेटफॉर्म्स भी है. लाइक वी गॉट ऑर्गेनिकली 100,000 यूजर्स from product for the first week. All organic, no paid marketing for 3 to 4 of our products. Easy. Of course, network helps, but using it on platforms, there are many Slack channels, there are many Discord groups. बम्बार्ड करो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो GenAI का नाम सुन के आ ही जाए. और रन एन ऐड, सिंपल. 100 यूजर ही चाहिए ना. अगेन बट अभी GenAI का एडवर्ड बहुत एक्सपेंसिव हो गया, सो वो भी देखा है. सो आफ्टर डूइंग इट ऑल राइट, यू माइट फील लाइक अगर सब सही हो गया तो सो आई थिंक that's a wrap. You can scan the QR code. वो अच्छा हो तो कसी लो, right, to connect with me offline. And if you have any questions, you can ask ChatGPT. Yeah, bye.